الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے کئی جمعہ سے ایمان کے 70 شعبوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ تو گزشتہ جمعہ جو ایمان کے شعبے تھے اس کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اس کے بعد آگے کے جو شعبے بچے ہیں اس کے بارے میں بات آئے۔ تو ایمان کے جو شعبے تھے ان میں سے دوسری قسم جن کا تعلق زبان سے ہے وہ نمبر 1 کلمہ پڑھنا، نمبر 2 قرآن پڑھنا، نمبر 3 علم سیکھنا، نمبر 4 علم دوسروں کو سکھانا، نمبر 5 دعا کرنا، نمبر 6 اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 7 لغو باتوں سے بچنا۔ یہ باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی، اس کے بارے میں تفصیل سے۔ تیسری قسم جن کا تعلق بدن سے ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اپنی ذات سے جن کا تعلق ہے وہ 16 ہے، اور دوسروں سے جو تعلق رکھتی ہے وہ 6 ہے، اور تیسرا ہے حقوق عامہ جو تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے تعلق ہے جن کا، وہ 18 ہے۔ تو جو گزشتہ جمعہ آ گئی تھی اپنی ذات سے تعلق رکھنا، اس کے متعلق نمبر 1 پاکی حاصل کرنا، نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 3 صدقہ کرنا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 حج کرنا، نمبر 6 اعتکاف کرنا، نمبر 7 دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلنا، نمبر 8 نظر پورا کرنا، منت پورا کرنا، نمبر 9 قسموں کی نگرانی کرنا، یعنی کوئی پرامس کیا ہے تو اس کو پورا کرنا، نمبر 10 کفارہ ادا کرنا، نمبر 11 ستر کا چھپانا، نمبر 12 قربانی کرنا، نمبر 13 جنازے کا اہتمام کرنا، نمبر 14 قرض ادا کرنا، نمبر 15 معاملات کا درست رکھنا، نمبر 16 سچی بات کی گواہی دینا۔ یہاں تک ایک پہلی قسم جو اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، پہلی قسم ہے، اس کے بارے میں بھی بات مفصل گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب دوسری قسم ہے جن کا تعلق کیا ہے، دوسروں سے تعلق ہوتا ہے، جس کا حق کیا ہے، دوسروں سے تعلق ہوتا ہے، جو ایمان کا شعبہ ہے۔ ان میں سے نمبر 1 نکاح کے ذریعے حرام سے بچنا، یعنی انسان کیوں نکاح کرتا ہے؟ تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین ہو سکے، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو سکے، اس لیے انسان کیا ہے نکاح کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے بال بچے پیدا وغیرہ جو بھی۔ تو اس کے اندر حرام بھی ایک راستہ ہے، حلال بھی ایک راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال نکاح کو رکھا ہے، تو حلال جب راستہ ہو تو وہ بھی اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو اس پر یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، اور اس پر بھی ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ملتے ہو اور اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی نے جب کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے ملتے ہیں، کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم حرام کو چھوڑ کر حلال راستہ اختیار کر رہے ہو تو اس پر بھی تمہیں ضرور ثواب ملے گا۔ تو نکاح کرنا جائز طریقے پر حرام سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک ایمان کا پارٹ ہے۔
तो इसलिए निकाह करना ये भी क्या है, ईमान के अंदर है। और दूसरे हदीस के अंदर आता है कि निकाह करना निस्फ़ ईमान है, यानी आधा ईमान जिसको अल्लाह के नबी ने बतलाया है। तो जब निकाह करता है तो उसका ईमान मुकम्मल होता है। तो निकाह करने पर इतनी सारी फजीलतें, एक तो ईमान का शोबा भी है और उसको आधा ईमान भी बतलाया गया और उसके ऊपर सवाब भी मिल रहा है। तो इतनी सारी फजीलतें इंसान को हासिल होती है। तो हराम से बचने के लिए अगर कोई इंसान निकाह करता है तो ये भी एक ईमान का शोबा है। नंबर 2, अहल व अयाल के हुकूक अदा करना। अहल व अयाल यानी बीवी बच्चे हो, माँ बाप हो, तो जितने भी रिश्तेदार हो, नौकर चाकर हो, खादिम वगैरह हो, तो ये जितने भी लोग हैं इनके हुकूक हुआ करते हैं। हर एक का हक अलग अलग होता है, भाई का हक अलग, बीवी का हक अलग, बच्चों का हक अलग, माँ बाप का हक अलग। इन तमाम के हुकूक अदा करना, इन तमाम की जिम्मेदारी लेकर उनकी जो जरूरतें हैं इंसान पूरी करता है, तो ये भी ईमान का एक शोबा है। आज हर इंसान क्या है, ये काम करता तो है लेकिन पता ही नहीं कि ये भी एक ईमान का शोबा है जिस पर भी हमें सवाब मिलता है। तो इसलिए इंसान को क्या है, ईमान का शोबा समझकर अगर करता है तो उस पर सवाब भी ज्यादा मिलता है। इसी तरह अगर क्या है, मैं ये करूंगा तो इस पर सवाब मिलेगा, इस इरादे से करता है तो और भी ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा सवाब अफजल सदका कौन सा है, तो अल्लाह के नबी ने एक रिवायत में फरमाया कि अपने बीवी बच्चों पर जो इंसान खर्च करता है वो सदका सबसे अफजल है। तो यहाँ पर सदक़े का सवाब भी मिल रहा है और साथ ही साथ ईमान का शोबा भी बन रहा है और उसके साथ और भी हुकूक दूसरों के हक पे अदा हो रहा है। इतनी सारी फजीलतें, तो इसलिए हमें क्या है, अहल व अयाल के हुकूक भी जरूर अदा करते रहनी चाहिए। नंबर 3, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, यानी वालिदैन माँ बाप जो है अगर किसी इंसान के जिंदा हो तो उनके साथ उनके हुस्न सुलूक करना। अगर इंतकाल कर गए हो तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। इससे पहले जुमा में भी बता दिया गया, वालिदैन जब जिंदा थे तब तो कुछ नहीं किया, पर जाने के बाद उसको अफसोस होने लगा उनका हक अदा नहीं किया बोलकर, तो उस वक्त क्या करनी चाहिए, क्या है बोलकर इसके बारे में तमाम बातें तफसील से इससे पहले जुमा में आ चुकी थी। तो जो इंसान के माँ बाप जिंदा हो तो उनके साथ हुस्न सुलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। और नंबर 4, औलाद की अच्छी तरबियत करना, यानी माँ बाप हैं तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना ये भी माँ बाप के लिए जरूरी है। माँ बाप के लिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कुछ जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छा नाम रखना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा नाम रखना जरूरी है, वरना क्या है, नाम के असरात भी पड़ते हैं। इससे पहले भी बयानों में बहुत सारे मर्तबा बतला दिया गया कि अच्छा नाम अगर नहीं रखते तो उसके बुरे असरात पड़ते हैं। बुरे असरात का नतीजा हम माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो बच्चे की जिम्मेदारी के लिए पहले उनके अच्छे नाम रखना, उनको कुरान हदीस की तालीम देना, दीन की तालीम देना, साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी देना, उनको अच्छे पोजीशन में रखना, ये तमाम जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। और साथ ही साथ अच्छी तरबियत करना, अच्छी तरबियत यानी अखलाकी एतबार से बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए, छोटों से किस तरह रहनी चाहिए, उस्तादों से किस तरह पेश आनी चाहिए, रिश्तेदार अगर आए तो उनके साथ कैसे रहनी चाहिए, ये तमाम जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप पर आती है। लेकिन आजकल माँ बाप क्या है, बहुत कम उसकी तरबियत करते हैं। दूसरे चीजों के बारे में फिक्र तो करते हैं, क्या मेरा बच्चा अच्छा घर में रहना, अच्छा गाड़ी वाला होना, अच्छी नौकरी वाला होना, इसकी फिक्र तो करते हैं, लेकिन उसके अखलाकी हालात को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। जब बच्चे के अखलाकी हालात दुरुस्त नहीं होते तो उसकी जिंदगी में चाहे तुम करोड़ों रुपए भी कमा कर दो, कहीं कामयाबी की सूरत वो नहीं देख सकेगा। क्यों नहीं देख सकेगा? या तो मियाँ बीवी के दर्ज बड़ा हो जाएगा, तरबियत सही माने में नहीं हुई तो मियाँ बीवी से लड़ाई हो जाएगी, सास ससुर से लड़ी हो जाएगी, उसके बाद तलाक का मामला वगैरह वगैरह होता है। तो इस तरह, और बाहर अगर अखलाकी एतबार से सही तरबियत नहीं हुई तो बाहर कहीं पर रिश्तेदारों से झगड़ा, दुकानदार से झगड़ा, नौकरी के यहाँ झगड़ा, इतनी सारी सूरतें इंसान को पेश आएगी। तो इसलिए इंसान को हमें चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना ये भी जरूरी है। अच्छी तरबियत अगर इंसान करता है तो उनका बच्चा क्या है, जहां भी जाए अपना नाम खुद कमाने वाला बन जाता है।
तो ये भी क्या है, अच्छी तरबियत करना, ये भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। नंबर 5, सिला रहमी करना, यानी रिश्तों को जोड़ के रखना, बाकी रखना, ये भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। आजकल क्या है, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ लिया जाता है, काट लिया जाता है, और यहाँ तक कह देते हैं कि मैं मरे तो भी मेरा मुंह देखना कबूल कर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह की हालात होती है। तो सिला रहमी करना ये भी ईमान का शोबा है। अगर कोई इंसान सिला रहमी नहीं करता, और सिला रहमी करने के बहुत सारे फवाइद हैं, माल में भी बरकत होती है। सिला रहमी जो इंसान करता है तो उसके कमाई में भी बरकत होती है, माल में भी बरकत होती है, उम्र में भी बरकत होती है, उम्र भी लंबी होती है, इतनी सारी फजीलतें उसकी हैं। जो इंसान सिला रहमी नहीं करता वो सब नुकसान उठाता है, माल में बरकत नहीं, साथ ही साथ कमाई में बरकत नहीं, और उम्र के अंदर देखो, जब देखो बीमारियों में मुब्तला रहता है। ये तमाम परेशानियां होती है, नुकसान भी होता है। और सिला रहमी करने वाले के बारे में हदीस के अंदर आता है कि रहम कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को पकड़ लेगा और अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, जिसने मुझे जोड़ कर रखा है तू भी उसे जोड़ कर रख, जो उसने मुझे काट कर रखा है तू भी उसे काट के रख दे। तो सिला रहमी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट भी करता रहेगा। तो इसलिए, और ये ईमान का शोबा भी है। सिला रहमी नहीं है तो ईमान का एक पार्ट ना रहा। जब ईमान ना रहा तो मुकम्मल ईमान नहीं रहता है। जब ईमान ही ना रहा तो सही माने में उसके बहुत सारे नुकसानात दुनिया के अंदर भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी उसके नुकसानात भुगतना पड़ेगा। नंबर 6, बड़ों की फर्मा बरदारी करना, ये भी ईमान का शोबा है। बड़ों की फर्मा बरदारी यानी बड़े जब हैं, एक होता है तजुर्बा, तजुर्बे की रोशनी में अगर तुम्हें बड़े कुछ बताते हैं तो उसे मानने की सिफत लेकर बैठनी चाहिए। आजकल तो क्या है, बड़ों का अदब व एहतराम, बड़ों की इज्जत करना, वो तो बच्चों में भी खत्म हो गया, नौजवानों के अंदर से भी ये बात खत्म होते जा रही है। और ये नौजवान ये नहीं समझते कि फ्यूचर में ये भी बड़े होने वाले हैं, इनके साथ भी ऐसा ही मामला पेश आने वाला है। ये बात ये लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आज तो गर्म है खून, जोश में है कि हम लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते, जोश में होने की वजह से। इसके बाद हमारा भी एक टाइम आएगा कि हम भी बड़े बनेंगे, तो जो छोटे हमें देखकर सीखे हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही मामला करेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो हम बच्चों को सिखानी चाहिए कि बड़ों का अदब व एहतराम करना। अगर बड़ों का अदब व एहतराम इंसान की जिंदगी से निकल जाता है तो वो कभी भी कामयाबी की सूरत सही माने में नहीं देख पाता है। आजकल बहुत सारे नुकसान, बच्चों के अंदर नाफरमानियां आ गई है। छोटे छोटे बच्चे भी उल्टे जवाबात, उल्टी बातें और एकदम निराश होने बात करना, बहुत सारी बुरी आदतें बच्चे सीखते हैं। और माँ बाप भी क्या है, सही माने में तरबियत नहीं करते, कहते हैं छोटा बच्चा है जान दे ले, छोटा बच्चा मालूम नहीं सर का बोल डाला, मालूम नहीं सर का बोल डाला, सभी बोल डालता है मालूम नहीं सर का। तो ऐसी हालत हो जाती है। तो जब मालूम नहीं सर का ये हाल है तो मालूम है होगा तो तब कितने अल्फाज इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने बच्चों को बड़ों का अदब व एहतराम करना सिखाना जरूरी है, और ये ईमान का शोबा भी है, ईमान का एक पार्ट भी है। तो अपने बच्चों को बड़ों का अदब व एहतराम करना जरूरी है। अब बाज लोगों का सवाल ये होता है, नौजवानों का, बड़े अजनबी उल्टे सीधे काम करते ना। हाँ भाई करते होंगे, एक तो होता है गलती, एक तो तजुर्बा होता है उनका। उन लोगों ने 60 साल 80 साल जितने भी उम्र देखी है उसमें बहुत सारे उन लोगों ने बातें देखी होंगी, उस हिसाब से उन्होंने किया, और उन्होंने पुराने जमाने के हिसाब से लगाया होगा, इस जमाने में वो बदल गया होगा, उस हिसाब से उनसे चूक गलती हो सकती है। ये तो एक हो सकता है। दूसरा हो तो गलती भी हो जाए तो उनको बताने का एक तरीका होता है, उनका अदब का लिहाज करते हुए एक बताने का तरीका होता है। ऐसा नहीं सर का मुंह पे ही झड़ा देना, मुंह पे ही उल्टे अल्फाज इस्तेमाल कर लेना, ऐसा बात बोल लेना कि सामने वाले को तकलीफ हो। बड़े बैठे हैं किस तरह बात करना है, बड़े बैठे हैं उनके सामने किस तरह अल्फाज इस्तेमाल करना है, ये तमाम का ख्याल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वरना क्या है, आपको देखते हैं छोटे छोटे, आज तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक वक्त आप भी बड़े होंगे, आपके सामने वही छोटे जो जिन्हें आपको देखकर जो बड़े हुए हैं वो भी आपके सामने बाद में चलकर वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले आपने इस्तेमाल करके आए थे। तो इसलिए बड़ों का एहतराम करना, अदब व एहतराम करना एक ईमान का शोबा भी है, और साथ ही साथ क्या है, और हमारे लिए कामयाबी के लिए जरूरी भी है। तो ये है दूसरी किस्म जो जिनका ताल्लुक दूसरों से होता है, दूसरों के साथ है।
اور تیسری قسم ہے یہ حقوق عامہ ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے یہ شامل ہے۔ نمبر 1 عدل کے ساتھ حکومت کرنا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی حکومت کرنا بولے تو اب پہلے کے سیاست میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، عدل کے ساتھ انصاف ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ بنے ہیں تو بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، بڑا آدمی دادا بن گئے ہیں تو پوتروں کے درمیان، نواسوں کے درمیان انصاف سے کرنا، بچیوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان انصاف سے کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہوتی ہے۔ ان تمام کے اندر انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت ایک طرف ہونا، یعنی باپ ہونے کی وجہ سے، دادا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں کو بڑے بیٹے سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، تھوڑے لوگوں کو چھوٹے بیٹے سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہونا، محبت کا ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن بیٹوں کے درمیان انصاف کا ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر بیٹوں کے درمیان انصاف نہ ہو تو بعد میں چل کر یہ دونوں بھائی پہلے اپنے دشمن بن جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی نافرمانی بھی کرنے لگیں گے۔ یہ وجہ آپ کی ناانصافی کی وجہ سے بنتی ہے۔ ایک مرتبہ بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ غلام کو میں اپنے بڑے بچے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دوسرے بیٹے کے لیے بھی یہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہیں رکھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، انصاف کرو اپنے بچوں کے درمیان، اگر بڑے بیٹے کو کچھ دے رہے ہو تو چھوٹے بیٹے کو بھی دینی چاہیے۔ ایسا انصاف کرو گے تو تبھی جا کر اپنے بچے کیا ہے، اپنے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ تو اس لیے آج کل تو بچے اپڈیٹ ہوتے ہیں، بچپن سے پورا سوچ لے کو رکھتے ہیں، بابا بڑے بیٹے کیا کیا دلاتے ہیں، چھوٹے بیٹے مجھے کیا دلاتے ہیں، بڑے بیٹے ہے تو وہ دلا، مجھے ہے تو یہ دلائی نہیں، آرام منہ پہ بول کے چلے جاتے، آرام سے بول دیتے، کوئی دکھتا وقتا نہیں، آرام سے بول دیتے۔ تم بڑا بیٹا کہتے ہو پسند اس کے تو وہ دلاتے ہیں تمہیں، اسے کہ ان کا تو وہ پسند، اسے ہونا ہے سو دیے، مجھے دیکھو یہ دیے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر بڑے بیٹے کی شادی ذرا دھوم دھام سے ہوئی، چھوٹے بیٹے کی کچھ کم ہی ہوئی تو پھر بھی بول دیں گے بڑے کا ہے تو اچھا دھوم دھام سے کرے، میرا کہیں کرتے نہیں بول کر کھڑ جاتا سامنے۔ تو اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں اور اس طرح کے حالات سننے میں بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا، عدل کے ساتھ حکومت کرنا، اور یہ چاہے بچوں میں ہو یا سیاست میں ہو، ہر لین کے اعتبار سے ہو، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 2 حقانی جماعت کا ساتھ دینا، یعنی اگر کوئی دو جماعتیں لڑی ہے تو دو جماعتوں میں سے کون سا حق پر ہے اس کا ساتھ دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ دو جماعتیں، چاہے دو آدمی لڑے ہو، دو جماعتیں لڑی ہو، دو گروپ لڑے ہو، جو حق پر ہے ان کا ساتھ دینا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 3 حکام کی اطاعت کرنا، یعنی ہمارے سروں پر جو بھی حاکم بنا ہے، بڑا بن کر بیٹھا ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے لیکن کیا ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کا حبشی غلام بھی اگر تمہارا امیر بنایا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کی، حکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، جو چیزیں جہاں پر شریعت جائز قرار دیتی ہے ایسے باتوں میں کرنا ہے، نافرمانی کے، شرک کے کاموں میں، غلط سلط کاموں میں، ایسی باتوں میں حکام کی اطاعت نہیں کی جائے۔ جہاں پر حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، یعنی ڈھیل دیتا ہے شریعت، جہاں پر ایسے کاموں میں حکام کی اطاعت یعنی گورنمنٹ کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4 آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا، یعنی آپس کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ جھگڑا وغیرہ ہو تو ان کی اصلاح کر لینا، اپنے دوسرے لڑائیوں کو سیٹلمنٹ کر لینا، یہ بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے، مفسدوں کو سزا دینا بھی آتا ہے۔ مفسد یعنی جو انسان کیا ہے، فتنہ مچاتا ہے، دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگا رہا ہے تو ان کو سزا دینا بھی کیا ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور باغیوں سے جہاد کرنا، یعنی اگر کوئی انسان کیا ہے ہندوستان سے لڑ رہا ہے تو اس کے جو انڈیا والے ہیں، انڈیا والوں کا ساتھ دینا اپنے دیش کی حفاظت کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے ملک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اپنے لڑائی کے اندر جیسے سیاست کی لڑائیاں ہوتی ہے، یہ پارٹی والے وہ پارٹی کو لڑ لے، وہ پارٹی والے یہ پارٹی کو مار لیے، تو ایسا حالات ہوتی ہے، جہاں پر حق والوں کا ساتھ دینا کیا ہے، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔
नंबर 5, नेक कामों में दूसरों की मदद करना, यानी अगर कोई इंसान नेक काम कर रहा है तो उसकी मदद कर रहा है, यानी कोई आदमी खाना खिला रहा है तो उसके साथ हमें भी हो सके तो ताउन करे, ताउन नहीं कर सकते तो खाना बांटने में हाथ बटा रहा है, उसके सालन वगैरह बांटने में हाथ बटा रहा है। जो भी नेक काम हो, चाहे नमाज पढ़ने में हो, ज़कात देने में हो, दूसरे जो भी नेक काम है उसके अंदर मदद करना, ये भी ईमान का एक शोभा है। और नंबर 6, नेक कामों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना, यानी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना, ये भी ईमान का एक शोभा है। नंबर 7, अल्लाह के हुदूद कायम करना। अल्लाह के हुदूद क्या है? अल्लाह ताला ने हर चीज की एक हद मुकर्रर कर दी है, ये करना ये नहीं करना, हर चीज को अल्लाह ताला ने हद बाउंड्री बना दिया है। वो बाउंड्री से अगर कोई इंसान बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर हद कायम करना। मसलन यूं समझे, कोई इंसान क्या है, चोरी करता है, चोरी की सजा अल्लाह ताला ने कहा कि उसके हाथ काटो, तो अब इसके ऊपर हद लगाना, उसके ऊपर हद लगाना जरूरी है। अगर कोई इंसान जिना करता है तो उसकी सजा अल्लाह ताला ने कहा, शादीशुदा होकर जिना करता है तो उसको संसार करो, अगर बगैर शादीशुदा के करता है तो उसे कोड़े बरसाओ। तो इस तरह हद अल्लाह ताला ने जो बाकी रखा है। और शराब पीता है तो उसकी हद अल्लाह ताला ने बता दी है, कोड़े मारो। तो इस तरह जो हुदूद अल्लाह ताला ने रखे हैं, उन हुदूद को अगर कोई इंसान क्रॉस कर रहा है, उन हुदूद को, उन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर हद कायम करना, ये भी ईमान का एक शोभा है। नंबर 8, जिहाद करना, ये भी ईमान का एक शोभा है। जिहाद के बहुत सारे माने आते हैं। एक होता है अपने आप से लड़ना, ये भी एक जिहाद है। एक होता है मुल्क के लिए लड़ना, ये भी जिहाद होता है। एक होता है इस्लाम के लिए लड़ना, ये भी जिहाद होता है। इस तरह बहुत सारे माने होते हैं। तो इसमें से जिहाद अकबर क्या है? अपने आप से लड़ना। जिहाद असगर क्या है? मुल्क के लिए लड़ना, इस्लाम के लिए लड़ना, ये सब जिहाद असगर के अंदर शुमार होते हैं। नंबर 9, अमानत अदा करना, यानी किसी की अमानत हमारे पास है तो उसको वापस लौटाना, ये भी क्या है? ईमान का एक शोभा है। नंबर 10, कर्ज देना और अदा करना, दोनों भी ईमान के शोभे हैं। कर्ज अगर कोई इंसान हमसे मांग रहा है किसी जरूरत की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, तो देना, ये भी ईमान का शोभा है। अगर हम किसी मजबूरी की वजह से दूसरों से कर्ज लेते हैं तो वो भी ईमान का एक शोभा है। तो जैसे कि रिवायतों में आता है, कर्ज देने वाला जब इंसान किसी इंसान को कर्ज देता है तो जितना कर्ज दिया है उतने रुपए उसे सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। हालांकि कर्ज देने के बाद वो पैसे वापस तो मिल जाएंगे, लेकिन उसे कर्ज देने की वजह से उसे जितने रुपए दिया कि उतने रुपए सदका करने का सवाब भी एक्स्ट्रा मिलता है। पैसे भी मिल गए, साथ ही साथ सवाब भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो कर्ज देना और अदा करना, और अदा करने के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छे तरीके से अदा करो। अच्छे तरीके से अदा करना यानी वक्त पर अदा करना, ये हुस्ने अदा के अंदर शुमार होता है। और अल्लाह के नबी ने बाज़ मर्तबा ऐसा भी किया है कि अगर कोई इंसान क्या है 1000 रुपए दिया है तो उसको अल्लाह के नबी ने 1100 बना के वापस लौटाया है। तो ये अच्छे तरीके से अदा करना, इसको शुमार किया जाता है। एक होता है वक्त पे देना, नंबर 2 वक्त से पहले देना, दोनों भी अच्छाई के अंदर शुमार होते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी सामने वाला मांगा नहीं, मैं 1000 रुपए देता हूं तो 1100 दे बोलकर मांगता है, तो जब तो वो सूद बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। उन मांगता नहीं है, खुद ही लेने वाला है, खुद ही खुशी से दे रहा है, तो ये अच्छे अदायगी के अंदर शुमार होता है और ये ईमान का शोभा है। ऐसा अदा किया जा सकता है। यहाँ पर ये मसला भी याद रखनी चाहिए कि अगर मैं एक मर्तबा कर्ज दिया हूं, वापस लौटाते वक्त क्या है उसने 1100 दिया, तो दूसरी मर्तबा वो मुझे मांग रहा है तो मैं उसे दे रहा हूं, तो अब मैं उम्मीद रखे बैठा हूं कि गए बार इसे दिए तो 1100 दिया ना, अब एक बार दिए तो अब एक बार देता कि 1100, 1000 रुपए के बदले में 1100, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। तो ये उम्मीद लेकर अगर मैं दे रहा हूं तो ये क्या है सूद के अंदर शुमार होता है। ऐसा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेने वाला, कर्ज लेने वाला क्या है खुशी से अगर वापस दे रहा है तो ले सकते हैं। अगर हम पहले से ही प्लानिंग में बैठे हुए हैं तो वो इंटरेस्ट और सूद शुमार होता है। हमें तो मंगे नहीं ना, बोले तो मंगे नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो ख्याल है ना, दिल के अंदर सोच कर ही ना दिए सो, तो इसलिए क्या है ये इंटरेस्ट हो जाता है। तो कर्ज अदा करना और देना ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 11 पड़ोसी का हक अदा करना, यानी आजू बाजू वालों के भी हुकूक हुआ करते हैं, उनके हुकूक अदा करना ये भी ईमान का शोभा है।
नंबर 12 मामले का अच्छा रखना, यानी दूसरों से जो मामलात होते हैं, चाहे लेन देन के मामलात हो या घर के मामलात हो, जितने भी मामलात हो एकदम साफ रखना, ये भी ईमान का शोभा है। अब मसलन यूं समझे, एक बड़ा दुकान वाला है, उसके नीचे एक काम कर रहा है या कैशियर है, काउंटर में बैठने वाला है, तो उसके और मालिक के दरमियान मामला साफ रखना, हिसाब किताब साफ रखना और बातचीत का लेन देन का मामला साफ रखना, और अगर हम किसी दूसरे को कर्ज दे रहे हैं ले रहे हैं उस मामले को साफ रखना। इस तरह ये जितने भी मामलात होते हैं इन तमाम को साफ रखना, ये भी ईमान का एक शोभा है। नंबर 13 माल को सही जगह पर खर्च करना, यानी माल कमाता है इंसान, फजूल खर्ची नहीं है, बेकार के खर्चे नहीं है, सही जगह पर खर्च करता है, तो ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 14 सलाम करना और सलाम का जवाब देना, ये भी ईमान का शोभा है, यानी सलाम अगर दूसरे इंसान को करते हैं वो भी ईमान का शोभा है, सलाम का जवाब देना ये वाजिब भी है और साथ ही साथ ईमान का शोभा भी है। और सलाम करना क्या है, ये दुआ भी है, तो इससे बहुत सारी फजीलतें। नंबर 15 छींकने वाले पर यरहमुकल्लाह कहना, यह भी ईमान का शोभा है। नंबर 16 लहव व लाइब से बचना, बेकार के खेल, बेकार के तमाशे, बेकार के कामों से बचना, यह भी ईमान का शोभा है। नंबर 17 दूसरों को अपने से तकलीफ ना होना, अपने आप को दूसरों को तकलीफ देने से बचाना, यानी मैं कुछ काम किया उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है तो उससे तकलीफ ना हो इसलिए दूसरों को अपने से तकलीफ होने को बचाते हैं, तो ये भी क्या है, ईमान का शोभा है। मसलन यूं समझे कि हमें जाते जाते रास्ते में एक पत्थर डाल के गए तो उससे दूसरों को तकलीफ होती है, ये नहीं सर का वो पत्थर इस साइड में डाल डाले तो दूसरों को तकलीफ नहीं दिए सर का चले गए, तो ये भी ईमान का शोभा है, इस पर भी सवाब होता है। और क्या है, नंबर 18 रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा रहे हैं, रास्ते में कोई शीश वगैरह है, कांटे हैं या कीचड़ वगैरह है, कुछ भी हो तो उसको हटा कर जा रहे हैं, तो ये भी ईमान का शोभा है। और इसी तरह दूसरी रिवायत के अंदर कुछ और बातें हैं, वो भी सुन ले कि हराम माल खाने से बचना, ये भी ईमान का शोभा है। अगर कोई इंसान हराम माल खाने से अपने आप को बचा रहा है तो ये भी ईमान का शोभा है। और शराब वगैरह हराम पीने से बचता है, शराब वगैरह है, सिगरेट वगैरह है, पान पराग वगैरह है, ये जितने भी चीजें हैं खाने से अपने आप को बचा रहा है, तो ये भी ईमान का शोभा है। हराम लिबास से बचता है, यानी हराम कमाई के जो कपड़े हैं वो पहनने से बच रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने बास कपड़े को हराम किया है, जैसे रेशम मर्द के लिए हराम है, रेशम का कपड़ा यानी सिल्क के कपड़े मर्द के लिए हराम है, तो वो कपड़े नहीं पहन रहा है, तो ये भी ईमान का शोभा है। इसी तरह हराम खेल से बचना, हराम खेल जितने भी हैं, जो भी हो जिसके अंदर गलीज काम होते हो, गलीज बातें होती हो, तो ये तमाम चीजें हराम खेल के अंदर शुमार होती है। जैसे जुआ खेल रहा है ये भी हराम है, और इसी तरह जिसके अंदर वक्त जाया होता है, वक्त बेकार होता है, ये भी हराम है। तो जितने भी हराम खेल हैं उन तमाम खेलों से बचना। इसी तरह क्या है, अष्टाचम्मा है, वो भी हराम के अंदर शुमार होता है। तो ऐसे जो बेकार के खेल हैं जिससे ना दीन का फायदा, ना दुनिया का फायदा, ना सेहत का फायदा, किसी किस्म का फायदा ना हो, तो ऐसे खेल वो जो नाजायज हैं, हराम है, ऐसे खेल से अगर कोई इंसान बचता है तो वो भी क्या है, ईमान का शोभा है। नंबर 5 नेकी पर खुशी होना, गुनाह पर नादिम होना, यानी कोई नेक अमल कर रहा है उस पर खुश हो रहा है, तो गुनाह कर रहा है उस पर शर्मिंदगी हो रही है, कहीं तो भी कराना बोलकर अफसोस हो रहा है, तो ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 6 दीनदारों से मोहब्बत रखना, यानी दीनदार जो लोग जो होते हैं, अल्लाह वाले जो इंसान होते हैं, अच्छे इंसान जो होते हैं, ऐसे इंसानों से मोहब्बत रखना, ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 7 मरीज की इयादत करना, यानी कोई इंसान बीमार है उसको देखभाल के लिए जा रहा है, तो ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 8 मेहमान का इकराम करना, मेहमान का इकराम करना ये भी ईमान का शोभा है। आजकल क्या है, मेहमान घर को आते हैं बोले तो इंसान परेशान हो जाता है, घर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम्हारे वाले कहीं का थे, हमारे वाले आए तो इज्जत करते नहीं, वो ये बोलकर, तो ऐसी परेशानियां होती है। तो मेहमान जब आता है तो उसके साथ साथ बरकत भी आती है, तो इसलिए मेहमान का इकराम करना ईमान का एक शोभा है। नंबर 9 मुजरिमों की सदरपोशी करना, यानी अगर कोई इंसान मुजरिम है, एक मुजरिम होता है गुनाह का मुजरिम, एक दुनियावी एतबार से मुजरिम, एक है अल्लाह के पास मुजरिम। दुनियावी एतबार से मसलन कोई इंसान क्या है, चोरी के अंदर जेल जाकर आया है,
تو یہ हमारे को मालूम, दूसरों को गांव वालों को मालूम नहीं है। तो इस मुजरिम के हम क्या है, ये जेल जाने का जो वाकया है हम छुपा कर रख रहे हैं, तो ये छुपाना भी क्या है, ईमान का शोभा है। दूसरा क्या है, अल्लाह के सामने मुजरिम, यानी अगर कोई इंसान कोई गुनाह इससे पहले करता था, मसलन यूं समझे कि पहले शराब पीता था, अब छोड़ दिया है, अब नहीं पीता है, तो अब दूसरे लोगों को मालूम नहीं है, तो हम वो बात को छुपा कर रखे हैं, या है ना कहीं छुप कर पी रहा था, हमने देख लिया, देख कर उसको छुपा कर रखा है, ये बताए कि आइंदा से नहीं पीऊंगा, उसने आकर माफी वगैरह मांग ली, तो उसको छुपा कर रखते हैं, तो ये भी क्या है, ईमान का शोभा है। तो मुजरिम के जो गुनाह है, मुजरिमों की जो ऐब है उसको छुपा कर रख रहे हैं, तो ये भी क्या है, ईमान का एक शोभा है। नंबर 10, सखावत करना, यानी दिल खोलकर लोगों को बांटना, लोगों को देना, ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 11, मुसलमान के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हैं, अपने लिए जो चीज पसंद करे वो दूसरों के लिए भी पसंद कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों से लेकर ऊपर दूर दूर तक, बड़ी से बड़ी चीज तक जो अपने लिए पसंद करते हैं, दूसरों के लिए वो भी वही चीज पसंद करना, ये भी एक ईमान का शोभा है। तो ये ईमान के 70 से भी ज्यादा शोबे हैं जो हदीसों के अंदर आए। तो इसलिए हमें अगर इन शोबों में से कोई भी एक शोबा हमारे अंदर कमी पाई जाती है, तो गोया क्या है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर से कमी है। मसलन यूं समझे कि एक गोल दायरा है, एक केक है, एक केक के अंदर से ये जितने भी शोबे हैं एक एक टुकड़ा है, अगर उसमें से एक टुकड़ा ना हो तो केक जिस तरह मुकम्मल नहीं हो सकता, इसी तरह क्या है, उसका ईमान भी क्या है, मुकम्मल नहीं हो सकता। अब जितने शोबे हमारे अंदर कमी होंगे उतना हमारा ईमान कमी है, और उतना ईमान हमारा कम होने की वजह से हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमें इन शोबों को पूरा करने की जरूरत है, इन शोबों पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग।